Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us. Today, you'll be able to see too many people on the screen, and they're all experts. They are all ACCA members, and they are experts on taxation. So I welcome all of them formally to the season 2 of 6 Digits session. As you can see on the screen, the topic for today is income tax ordinance, and that's what we're going to work on today. So a very important, very interesting set of skills that we're trying to develop here. So whatever we've done till now was more working on the mindset, was more working on objective setting, on different ways of perceiving a particular situation and reacting to it. And therefore, आज मैं देख रहा था हमने कितनी ground cover की है. So if we can very quickly revise what we'd all done. So we began with self-assessment. Right? We started with how should you look at yourself and assess yourself. Number 2, you discussed how to do a 30 seconds introduction. Number 3, goal setting process. Yeah? And under the goal setting process, you did OPA as well. And I'm sure जो हमारे seniors हैं 6 digit program के, all these terms will be familiar to them also. So you can see them smiling here. So OPA document, then building focus, then asking questions. Then we went on to business proposal development. Yeah. I think उसमें जो videos हमने देखी Shark Tank वाली, I think they were quite interesting and quite indicative of how should you be prepared to make a pitch. Then we went on to discuss the ethics and professional skills module. And in between the ethics and professional skills module, we also did the Samsung case study. And I'm sure our seniors are also familiar with this Samsung case study, the case of exploding phones. But interestingly, Suleiman, Farooq, and Ishtiyaq, we were exploring more cases, and would you believe that there's such a big wealth of cases that is now available. Just to make a quick reference, just before Airbnb hit the market, and that's why we call it disruptive technologies, there was a business model of the hotel industry that was picking up very sharply, and that was prefabricated hotels, which were only to be assembled and constructed to give a physical space to a hotel. And in about a year's time, the company that had come up with this initiative, they came up with about 100 hotel sites, and then came Airbnb. And you can imagine what would have happened to those 100 sites which were developed under that initiative. So that's how quickly the world of disruption is going around. So some case studies have been done, and now this is the first time we are talking about a particular skill. For this week and the next week, it is going to be all taxation. And the purpose of doing this discussion over the next 2 weeks is to make sure that there's ample amount of focus developed on this subject of taxation. It goes without saying that if you do not have good taxation skills to offer to your employer, there is definitely a very big item missing from the menu that you have to offer to an employer, a very big item, okay, which is the key focus of most of the employers, especially if it is small and medium enterprises. So this skill is to be developed very avidly and very carefully, okay, and with a deep sight of how does it apply to your situation. Let me very quickly introduce to you our 3 experts in taxation. So starting from Hafiz Suleiman. By the way, all 3 of them, I must introduce, are our champions and ACCA members from our last 6 digits
session. And this is not the first time that they are doing a session like this. This year around, when we were doing pre-budget and post-budget sessions, there were events with experts that these three stars of ours, they conducted, sitting with with government officials, sitting with the FPR chair, I mean the member policy in FPR, and various other individuals. So all three of them, they've done some phenomenal work in the field of taxation, and all three of them are members of ACCA Pakistan's taxation subcommittee as well. Okay, so you can imagine it has been less than a year since we finished the last 6 digits program. It ended up, I think, in October. Am I correct? Or was it November? So in less than a year, look at the growth and development of the individuals who were involved, right? And those who continued till the end. I mean, in a very short period of time, they have seen a turnaround in their careers, in their professional lives, in their visibility, in their limelight that they're getting, in the fraternity of ACCA. So that's exactly what all of you should also be aiming for. I mean, I'm sure these will be inspirations for you. So without any further ado, I don't want to take time from these individuals talking about taxation. I don't want to take any time from you. I'll very quickly introduce. We have Hafiz Suleiman. हाफिज साहब, आप अपना प्रोफेशनल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आप खुद इंट्रोड्यूस कराइएगा, और उसमें टैक्सेशन कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है. Then we have Mr. Sikandar Ishtiaq, and finally we have Mr. Mohammad Farooq. Okay, so I can very briefly touch upon the plan of what we're going to follow. So it's going to be the income tax ordinance today, followed by income tax returns, then followed by withholding tax returns, and then finally we're going to talk about the sales tax returns. So that's the plan, और ये अगले 2 weeks में आपके पास चल रहा होगा. We very clearly discussed that these are going to be very interactive sessions. मैं ये suggest करूँगा, इसमें presenter हाफिज सुलेमान है. So सुलेमान, आपको एक काम करना है कि जो क्वेश्चंस का डायलॉग बॉक्स है उसको खोल के शेयर करना है सबके साथ. उससे फायदा ये होता है that when people are typing in questions, everybody is able to see who's asking which question. So आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आपको साइड पे करनी होगी, और इसके साथ क्वेश्चंस की जो विंडो है वो ओपन करनी होगी. ठीक है, सो अगर आप कहें तो मैं अभी एडजस्ट करवा दूं आपको, उसके बाद वी विल मेक इट फॉर्मल बिगिनिंग, ताकि आप लोगों का मोमेंटम ब्रेक नहीं. सो आपने ये करना ये है कि क्वेश्चंस का डायलॉग बॉक्स आपको नजर आ रहा है या नहीं? इस वक्त आ रहा होगा, सिर्फ सुलेमान को नजर आ रहा होगा क्योंकि फारूक और सिकंदर जो हैं वो पैनलिस्ट्स हैं. सो सुलेमान, अगर आप क्वेश्चंस वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लें, और इसके बाद अगर आप फाइल ऑप्शन पे जाएं, फाइल मेन्यू ऑप्शन पे, राइट, इसके अंदर एक ऑप्शन है लैब्स, LABS, राइट, और उसमें तीसरी ऑप्शन है इंक्लूड गो टू वेबिनार ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग, उसको ऑन कर लें. राइट, ठीक है, यस. सो अभी आपकी स्क्रीन थोड़ी सी जम्बल अप हो गई होगी. यू मे स्विच द कैमरा व्यू, आप स्विच ऑफ कर दें कैमरा व्यू को, और अपनी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन और क्वेश्चंस डायलॉग बॉक्स को इक्वल स्पेस दे दें. नहीं, नॉट योर कैमरा, the camera window. Keep your camera switched on, the camera window. Yes, that's right. और ये जो प्रेजेंटेशन स्क्रीन है इसको आपको स्क्वीज करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, राइट, और क्वेश्चन विंडो को साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा. आप प्रोबेबली स्लाइड शो मोड में रन नहीं करेंगे, आप इसको वैसे साइड पे रख लेंगे प्रेजेंटेशंस को.
So स्लाइड शो से आप एग्जिट कर लें और क्वेश्चंस डायलॉग बॉक्स को साथ में एडजस्ट कर लें एग्जैक्टली। तो इसका वो रिस्टोर का बटन दबा के आप Everyone can see the questions of what. Yes, but they're covering your presentation. So अगर आप presentation वाली विंडो को का साइज छोटा कर लें थोड़ा, मैक्सिमाइज नहीं करें, अभी मैक्सिमाइज है ना पावर पॉइंट वाली विंडो। So top right corner, second button from right. Yes. कैमराज आप जो आपका व्यू आ रहा है वो चाहे हाइड कर दें चाहे बंद कर दें। That's it. अब ये दोनों जो विंडोज हैं इनको आप Why don't you transfer this question? नहीं, उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल जो प्रेजेंटर होता है वो क्वेश्चंस डिस्प्ले कर सकता है और लोग नहीं कर सकते, उनकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होती। ठीक है, सो आप अगर वही रिस्टोर कर लें इसको पावर पॉइंट की विंडो को, तो फिर देयर विल बी स्पेस फॉर योर क्वेश्चंस डायलॉग बॉक्स एज वेल। पॉसिबल? पावर पॉइंट को आप रिस्टोर कर लें ना, मैक्सिमाइज ना करें, रिस्टोर कर लें। सेकंड बटन फ्रॉम राइट, टॉप राइट जो पावर पॉइंट का है। That's right. अब बस इसको इन दोनों को आप एडजस्ट कर लें। Yes, that's how you do it. साइज मैनुअली बड़ा कर लें इसका, क्वेश्चंस डायलॉग बॉक्स से भी साइज मैनुअली बड़ा कर लें। That's right. That's right. You need a little bit more space for your questions box. A little bit. ये जो आपकी कैमरा ट्रांसमिशन आ रही है उसको बेशक आप क्लोज कर दें। Right. Not the camera itself, just the transmission. That's right. ठीक है जी, I think that's थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर, you should be fine. मुत्तहिद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुत्तहिद आप कल थोड़ा सा तसल्ली के साथ ही ऑन करवा दीजिएगा, स्क्रीन इक्वली शेयर करवा के। अभी काफी बेहतर हो गया, ठीक है, आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। So over to Hafiz Suleiman and for an introduction, a round of introduction, and then Suleiman will continue. Okay? Right. Thank you very much. I'm going mute and going behind camera. Right. Good luck. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. I'm Hafiz Suleiman, and currently I'm working as Manager Accounts and Taxation at Hadif Jewelers. I'm also the member of MNP Taxation Subcommittee, and I was the participant of 6-digit edition 1, 6-digit program edition 1. So I'm the presenter today for brief on income under Income Tax Ordinance 2001. I handed over the introduction to Farooq. Thank you very much, Suleiman. Welcome all of you. I am Mohammad Farooq. I am working as General Manager with SMC Group of Companies. I have been a part of 6-digit program session 1 as well. So I'll go through with you at sales tax ordinance and sales tax returns as well. Thank you very much. Over to Skandar Ishtiaq. Thank you, Farooq. My name is Skandar Ishtiaq. I am ACM member. I am currently working as Senior Executive Finance in Tricon Boston. It's one of the largest wind power plant in Pakistan. I'm also a member of ACCA Subcommittee for Taxation and also member of United Nations Sustainability Group 66 and Climate Reality Program and representing Pakistan. Now I will hand over to Hafiz Suleiman to give you brief on income tax under Income Tax Ordinance 2001 to proceed further. Right. Thank you, Sikandar and Farooq. Actually, income tax या taxation जो local है ये बहुत ही important है हमारी employability के लिए. हर employer
इस चीज को डिमांड कर रहा होता है कि व्हाट यू नो अबाउट टैक्स, स्पेशली विद होल्डिंग टैक्स एंड सेल्स टैक्स। तो यहाँ पे हम लैग करते हैं। और if I talk about my history, so things happen like this कि I completed my articles and went out to industry. Everyone asking for like आपको टैक्स में क्या आता है? So I went back to my firm and spent more time in firm as in traineeship. So let's start with the brief on income under income tax ordinance. आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो कवर करता है सिर्फ और सिर्फ इनकम को और इनकम के हेड्स को। So the session outline is like कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की फॉर्मेशन क्या है, उस वो क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या हेल्पफुल मटेरियल आपको मिल सकता है। देन वी गो टू मेजर हेड्स ऑफ इनकम, जो कि आप सब इससे फेमिलियर होंगे, और इसके बाद हम सेक्शन टू सेक्शन इसके ऊपर जाएंगे। सो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की फॉर्मेशन में सबसे पहले वो सेक्शन डिस्क्राइब किए जाते हैं जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि व्हाट इज ऑल अबाउट इट। उसके बाद फर्स्ट कैजुअल है जो आपको तमाम रेट्स बताता है। सेकंड कैजुअल में एग्जम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस के बारे में बताया जा रहा है। रेट अलाउंसेस हैं, रूल्स इंश्योरेंस बिजनेस के हैं, रूल्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एंड ऑफ द पेट्रोलियम है। इसी तरह ये सारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो डिजाइन किया गया है और काफी कॉम्प्लेक्स लिखा गया है कि मतलब अगर कोई एक कॉमन मैन को कहा जाए कि भाई ये ऑर्डिनेंस है और ये पढ़े तो उसके लिए काफी डिफिकल्टी रहती है। तो इसके लिए आपको लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ टाइम निकाल के इसको पढ़ना चाहिए। एज जैसे एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म मॉड्यूल आपके लिए कंपलसरी है, इसी तरह इसको भी पढ़ना कंपलसरी है क्योंकि ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इनहेंस करता है। So we have salary income, income from property, business income, capital gains, and income from other sources. So salary income, we all know about salary or employment income, but what are the differences in the salary income in Pakistan? अब क्योंकि हम यूके टैक्सेशन पढ़ के आते हैं तो काफी ज्यादा चीजें फेमिलियर भी हैं लेकिन कुछ चीजें शॉकिंग भी हैं कि भाई ये किस तरह टैक्स हो गया। So अगर हम बात करें तो एम्प्लॉई का और एम्प्लॉयर का सेम वही डिफरेंस है जो हम यूके टैक्सेशन में पढ़ते हैं। उसकी क्या एबिलिटीज हैं, क्या अथॉरिटीज हैं, वो उसी तरह डिफाइन की जाती हैं। बट द थिंग इज देयर आर मेजर डिफरेंस फॉर द इंडिविजुअल्स हु अर्निंग सैलरी एंड हु आर अर्निंग फ्रॉम बिजनेस। और पाकिस्तान में इसकी बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी गई हैं। ये यूके की तरह नहीं है कि जहां पे आप जो मर्जी इनकम अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर सेम स्लैब रेट्स लगते हैं। हर हेड जो है वो अलहदा से टैक्स्ड होता है। So if we talk about salary, so it consider like pay, wages, remuneration, perquisite allowances, expenditure reimbursed for performance of employees duty and profits in lieu. अब यहाँ पे ये भी बात है कि अगर आपको करंट एम्प्लॉयर या आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर भी कुछ दे रहा है तो दैट इज आल्सो टैक्सेबल। और इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए 10% जो है वो बेंचमार्क रेट रखा गया है। सर्विसेज एंड यूटिलिटीज अगर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इवन यू आर प्रोवाइडिंग विद अ हेल्पर एट होम और यू आर प्रोवाइडिंग विद ड्राइवर, दैट इज उसकी सैलरी भी आपके लिए टैक्सेबल है। आपने उसका टैक्स पे करना है, उसका अलहदा से टैक्स लगेगा, आपको अलहदा से टैक्स लगेगा। सो इफ यू मूव फर्दर तो मैं आप सबसे, क्योंकि क्वेश्चन टैब आपके पास अवेलेबल है, तो इसमें कोई मुझे मोटी मोटी सी चीजें आप बताएंगे जो आपको पाकिस्तान और यूके टैक्सेशन में एक्सक्लूसिवली डिफरेंट लगी हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम में, क्योंकि आपने भी इसी फेज से गुजरे होंगे, कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग विद द मेंबर्स। मैं उतनी डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहा बिकॉज आई नो कि सम पीपल आर हेयर जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा और सैलरी इनकम हर कोई अर्न कर रहा है तो ही नो अबाउट इट। If you don't know about it or give any suggestion, please raise your concerns. In UK moves.
So we have some concerns, like most of the allowances are taxable in Pakistan. Yes, you are exactly right. आपको टैक्स ज्यादा किया जाता है पाकिस्तान में. In the UK, benefits in kind are more taxable than Pakistan, I think. Pak tax doesn't give exemptions on any benefits provided by employer. Why? Actually, the way we are talking about, like, क्यों हमें ये नहीं दिया जा रहा, इसकी reasons जो हैं वो जैसे साथ ही आपने साल लिखे car allowance tax and carbon dioxide emission in UK. I have not yet. पाकिस्तान एक वो कंट्री है कि जहाँ पे टैक्स की कमी है. हम में से अक्सर लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते और उसी वजह से गवर्नमेंट वो पॉलिसीज बना रही है कि जिसको जितना ज्यादा टैक्स किया जा सकता है उतना ज्यादा टैक्स किया जाए. सो दैट्स द आंसर कि यहाँ पे क्यों नहीं छोड़ा जा रहा. डबल टैक्सेशन इन पाकिस्तान, राइट. सो इससे मुझे थोड़ा आइडिया हो रहा है कि आप सब भी परेशान है काफी ज्यादा. Yes, medical allowance is exempt from tax, but up to 10% of the salary you earn, उससे ऊपर taxable है. So thank you for your feedback. Let's move towards. अच्छा, एक चीज for performance of duty जो आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या किसी भी तरह की आपको प्रेमिसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए कि जी आप वहां पे रहें, वो भी टैक्सेबल है. तो ये भी एक शॉकिंग न्यूज है सबके लिए. और लाइक एक बंदा जिसको कोई सहूलत प्रोवाइड की जा रही है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, वो भी टैक्सेबल बना दी हुई है. लेकिन इधर एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर वो जो इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है वो एक्सपेंस आउट कर दिया जाए एम्प्लॉयर्स के अकाउंट में, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल. So okay, the PPE is taxable for employee if he reimburse and employer do not वो declare करे उसको as an expense in his account. Yes, masks given by employer are taxable. Right. So if we talk about the slab rates of salary income, we come to know that there are many of the tax slabs available. Like 6 लाख से शुरू होके हम 7.5 करोड़ पे तक जा रहे हैं and different rates are applied. तो अब अगर हम इसको एज ए कंपैरिजन देखें तो ये काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है हमारे लिए, जहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 स्लैब्स अवेलेबल हो और यहाँ पे आपके पास 10-12 स्लैब्स अवेलेबल हो. और फिर उसके ऊपर टैक्सेशन कैलकुलेशन के लिए जिस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिफाइन करता है वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. कई लोग उसमें फंसे रहते हैं. इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है ताकि आपको समझ में आ सके कि हाउ यू कैन कैलकुलेट योर टैक्स लायबिलिटी. Yes, slabs keep on changing every year, but ये मेजर चेंजेस जो थी हैं ये 2019 के फाइनेंस एक्ट के थ्रू शामिल की गई थी और अभी तक यही रेट्स चल रहे हैं. पेंशन इज नॉट टैक्सेबल. Yes, assets provided by employer is taxable. So अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करके तो थोड़ा सा आगे मूव करें तो हम थोड़ा सा और देखेंगे. थैंक यू फॉर योर फीडबैक. हाउ यू
Okay, let's talk about income from property. So if we talk about income from properties, specifically related to rental income. So it excludes the fee received for amenities and utilities and lease of building together with the plant and machinery. मतलब अगर आप कोई फैक्ट्री रेंट आउट कर रहे हैं तो वो आपकी रेंट में नहीं आएगी, बल्कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। अब सैलरी इनकम अगर आप अर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपके सैलरी इनकम के स्लैब्स लगेंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो इसके लिए अलग से स्लैब्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वो आपको देती है। बट देयर आर सम रूल्स डिफाइंड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 एंड सेम इन 2020। जो न्यू एडिशंस की गई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो पिछले साल एडिशन थी वो भी साथ में आपको डिफाइन करता हूँ। पिछले साल एक रूल डिफाइन किया गया था कि जिसकी रेंटल इनकम दैट एक्सीड 4 मिलियन, उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल थी कि वो उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कैटेगराइज करे या फिर उसको इनकम फ्रॉम रेगुलर इनकम जो सी उसको कंसीडर करे। रेगुलर इनकम में जाहिर सी बात है उसको जो स्लैब्स अवेलेबल होंगे, लाइक अगर उसकी मेजर इनकम इज कमिंग फ्रॉम सैलरी तो वो सैलरी स्लैब लगाएगा। इफ हिज इनकम इज कमिंग फ्रॉम बिजनेस तो वो बिजनेस स्लैब्स लगाएगा। अब ये ऑप्शन जो है ये नॉर्मली सबके लिए अवेलेबल है, बट द लिमिटेशन इज ओनली टू दोज जिनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज लेस देन 200,000, क्योंकि 200,000 जो सी है वो एग्जम्प्ट इनकम है अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सो इन योर ओपिनियन आपके लिए क्या ज्यादा सूटेबल है कि हम उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को एज रेगुलर इनकम टैक्स करें या फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंडर ही टैक्स किया जाए उसको? So it's a tax planning actually. Let's see what we can. Is taxed and properly was taxed. प्रॉपर्टी इनकम जो है वो अलग से टैक्स की जाती है, उसके अलग से स्लैब्स अवेलेबल है और सैलरी इनकम के अलग से स्लैब्स अवेलेबल हैं। इफ यू कैटेगराइज इट एज रेगुलर इनकम तो आपके वो रेगुलर स्लैब्स के साथ टैक्स होगी, और अगर आप नहीं करते तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अलग से टैब होता है। जब हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे जिसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में जाएंगे तो उधर अलग से टैब अवेलेबल है जिसमें आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैटेगराइज करते हैं। अगर तो वो बिजनेस कर रहा है तो उसका तो बिजनेस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेशन ही नहीं है। विद इन लॉ बेसिक टैक्स प्लानिंग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इनकम आपकी ऑलरेडी है और आप कितनी रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं और उस पर कितने एक्सपेंसेस कर रहे हैं। दिस इज अकाउंटेंट, लाइक अकाउंटेंट इसको डिफाइन कर सकता है। About the residential. Both are categorized in the same income from property, residential and commercial property. No, actually 200,000 is the limit. उससे ऊपर जो जाएगा उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। Let's move to the next slide. And income from property deductions allowed. If you are an individual and earning income from property, then you will not be allowed any deduction अगर आप उसको सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही में कैटेगराइज करते हैं। अगर आप उसको रेगुलर इनकम में लेके जाएंगे तो जो परटेनिंग टू रेंट आपने एक्सपेंसेस किए हैं उस रेंट को जनरेट करने के लिए वो आपको अलाउड होंगे। और इधर स्पेसिफिक रूल कंपनी के लिए थोड़ा सा अलग है, बिकॉज कंपनी जो है उसको डिडक्शंस अलाउड होती हैं और वो नीचे डिफाइन की गई हैं कि रिपेयर्स अप टू 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स इज डिडक्टेबल। इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो भी डिडक्टेबल है। लोकल टैक्स
charge or cess other than the income tax is deductible. Income tax आपका net rent के ऊपर होगा after all expenses deducted. इसी तरह इंटरेस्ट चार्जेस हैं, एक्सपेंडिचर्स नॉट एक्सीडिंग 6% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स. लीगल सर्विसेज जो आप दे रहे हैं, मतलब आपके कोई डिस्प्यूट हो गया है या आपने जो भी अदर लीगल सर्विसेज ली हैं वो भी आपकी डिडक्टेबल है. एनी अनपेड रेंट, अब आपने पहले रेंट रिकॉर्ड कर लिया लेकिन वो आपको रिकवर नहीं हुआ, बैड डेट हो गया, तो वो भी आपका अलाउएबल डिडक्शन है. सो इफ वी टॉक अबाउट द टैक्स रेट्स, तो इसके लिए ये फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर अलहदा से सारे रेट्स डिफाइन किए गए हैं और इसमें भी पहले थोड़े कम स्लैब्स थे, अब इसमें भी काफी ज्यादा स्लैब्स बना दिए गए हैं और मैक्सिमम रेट टैक्स का 35% कर दिया गया है. अब लोगों का कई दफा क्वेश्चन होता है कि जी हम तो 35% पे टैक्स हो रहे, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो 35% नहीं, वो कम होता है. उसकी रीजन ये है कि आपको पिछले स्लैब्स पे कम रेट पे टैक्स लग रहा है. So if we move towards the business income, सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 36 तक बिजनेस इनकम से रिलेटेड हमारे सेक्शंस हैं और बिजनेस इनकम में हर किस्म की ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन और एडवेंचर और कंसर्न सब चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं. जिस तरह की भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बिजनेस इनकम है. कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल कर रहे हैं, सब इसी में कैटेगराइज होते हैं. इधर सेम वही डिफरेंसेस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट का है कि आप किस में कैटेगराइज अपने आप को कर सकते हैं. उसके लिए आपके कंट्रोल्स देखे जाते हैं, आप उधर कितने डिसीजन मेकिंग पावर्स रखते हैं और डायरेक्ट अथॉरिटी है आपके पास या नहीं है. यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि पार्टनर ऑफ एओपी और सोल प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस वो अपने ही बिजनेस से क्या सैलरी अर्न कर सकता है और अपने आप को बिजनेस इंडिविजुअल की बजाय सैलरीड इंडिविजुअल में कैटेगराइज कर सकता है. So majority is going with no and no is the answer because आप अपने ही बिजनेस से ड्राइंग्स कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस से सैलरी नहीं ले सकते. और ये अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वहां से आप एज अ डायरेक्टर सैलरी अर्न कर सकते हैं. बट व्हेन यू आर पार्टनर ऑफ एन एओपी तो आप डायरेक्ट उसके ऑनर हैं, आप अपनी ही बिजनेस से यहाँ पे सैलरी नहीं ले सकते. यूके टैक्स रूल्स आर डिफरेंट, बट पाकिस्तान सेड कि अगर आप किसी भी कंपनी के पार्टनर हैं या सोल प्रोप्राइटर हैं तो आप उस बिजनेस से सैलरी नहीं ले सकते. वो आपकी बिजनेस इनकम है और बिजनेस इनकम में ही टैक्स होगी क्योंकि बिजनेस और सैलरीड इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्स है वो डिफरेंट है. उसके बारे में थोड़ा सा वेट करें तो आपको वो भी शो करवा देते हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में भी सेम रूल है बिकॉज वहां पे भी आप पार्टनर हैं और आप उसमें से ड्राइंग्स और कैपिटल इंजेक्शंस कर सकते हैं, सैलरी अर्न नहीं कर सकते. सो योर एक्चुअली अगर आप अपनी सैलरी लगाते भी हैं तो वो आपकी ड्राइंग्स कंसीडर होंगी इन टैक्स अकाउंटिंग. सो बिजनेस इनकम के लिए हम दो तरह के मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, यू ऑल आर मेंबर्स. सो अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस. तो इसमें कोई भी पर्सन जो है उसको राइटिंग में अप्लाई करना पड़ेगा. अगर वो पहले कोई और मेथड यूज कर रहा था, से कैश बेसिस यूज कर रहा था और अब अप्रूवल पे कर रहा था, तो उसको कमिश्नर से इस चीज की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि ही इज चेंजिंग हिज अकाउंटिंग मेथड. अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो बिजनेस के लिए तो ये अकाउंटिंग मेथड हो गई, लेकिन अब जो लोग सैलरी अर्न कर रहे हैं या फिर रेंट अर्न कर रहे हैं उनके लिए कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज किया जाना चाहिए.
मेजॉरिटी ने सही रिप्लाई किया है, कैश अकाउंटिंग ही यूज होता है। आप अपनी रिसीट्स के ऊपर टैक्स देते हैं। अक्रूवल बेसिस बिजनेस के लिए तो यूज किया जा सकता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक सैलरी, income from property or income from other sources, that is particularly relating to receipt basis. अब बिजनेस में से आप क्या क्या एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकते हैं? तो हर वो एक्सपेंस जो आपका बिजनेस से रिलेटेड, आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस और अपने जो भी आप खर्चे अपने लिए कर रहे हैं उसको डिडक्ट नहीं कर सकते, पर्सनल अपनी जात के लिए। जो भी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू बिजनेस है वो डिडक्ट किए जा सकते हैं फॉर रीचिंग टू द टैक्सेबल इनकम। अब लेकिन अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 21 ये डिफाइन करता है कि आप क्या चीजें डिडक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एनी टैक्स पेड और लिविड इज नॉट डिडक्टेबल। एडवांस टैक्स पेड इज नॉट डिडक्टेबल क्योंकि वो आपका एसेट बनता है, ना कि आपका एक्सपेंस बनता है। इलीगल एक्सपेंसेस लाइक आपने पॉलिटिकल सपोर्ट की, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं तो वी नो कि हमें काम करवाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ता है, तो वो डिडक्टेबल नहीं है। कंट्रीब्यूशंस टू एनी प्रोविडेंट फंड इज नॉन डिडक्टेबल। फाइन एंड पेनल्टीज जो आपने पे की हैं वो डिडक्टेबल नहीं है, उसको आपको इनकम में ऐड बैक करना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, कैपेक्स आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं, वो भी ऐड बैक होंगे। अब यहाँ पे एक सर्टेन रूल जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कैश के अंदर एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं है इन केस ऑफ बिजनेस, लेकिन उसने आपको लिमिट लगाई कि जी इन सिंगल हेड ऑफ एक्सपेंस यू कैन गो इन कैश फॉर अप टू 250,000 रुपीज। अब कैश में एक्सपेंसेस की पहले लिमिट इस फाइनेंस एक्ट से पहले तक ये 250,000 की बजाय 50,000 थी। इसको इंक्रीज कर दिया गया बिकॉज वी नो ऑल अराउंड पाकिस्तान के सब कैश बेसिस पे चल रहे होते हैं। आपको बैंकिंग चैनल के ऊपर जाने के लिए स्पेशल वेंडर्स लोकेट करने पड़ते हैं। सो द एक्सपेंसेस विच आर पैटी इन नेचर, उसके लिए आपको रिलैक्सेशन दे दी गई कि 250,000 इन सिंगल हेड ऑफ अकाउंट आप कैश जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उनको डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर अलाउड नहीं है, वो ऐड बैक हो जाएंगे आपकी इनकम में। इसी तरह एक्सपेंडिचर इन पेड इन कैश इन अबव ₹25,000, इसकी लिमिट ये है कि एक सिंगल वेंडर से आप पूरे साल में 25,000 से ऊपर कैश में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जैसे ही आप एक्सीड करते हैं 25,000 से, आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड द सेम विल बी फॉलोड इन विद होल्डिंग टैक्स, उधर भी ऐसे ही लिमिट्स डिफाइन की जाएंगी। वो नेक्स्ट सेशन में आपको सारा डेफिनेशन जो सी है वो मिलेगी। इसी तरह सैलरी पेड इन कैश, इसकी लिमिट 15,000 थी, अब 25,000 कर दी गई है। तो काफी रिलैक्सेशन इस दफा कोविड की वजह से भी मिली है, और इसके अलावा गवर्नमेंट भी इनिशिएट कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्सेबल टैक्स नेट में लेके आ सकें। It increased to 25,000 instead of 10,000. यस, सैलरी जो है वो पहले 15,000 तक आप कैश में रिसीव कर सकते थे या आप दे सकते थे। फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020 आपकी लिमिट 25,000 कर दी गई है। 250,000 is not capital expenditure, it actually related to expenses, normal, regular और petty cash expenses. इसकी लिमिट पहले 50,000 थी, इसको इंक्रीज करके 250,000 कर दिया गया सिंगल हेड ऑफ अकाउंट में। इससे ऊपर ये अलाउड नहीं है और वो ऐड बैक टू इनकम हो जाएगा। So let's move towards the depreciation. Depreciation की definition सब लोगों को पता है कि क्या है। टैक्स डेप्रिसिएशन और नॉर्मल डेप्रिसिएशन में डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमें अकाउंटिंग एंट्रीज को या टैक्स कैलकुलेशन के टाइम पे, प्रोविजन कैलकुलेशन के टाइम पे एडजस्टिंग एंट्रीज करनी पड़ती हैं। सो फॉर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसने डिफाइन किया कि बिल्डिंग के लिए 10% रेट है,
whatever you applied, आपको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है उसको 10% करना पड़ेगा। सेम विद द प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक गाड़ी कंपनी की है और उसको पर्सनल घरेलू यूज भी किया जाता है 30%, तो फेयर प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर उसका कितने % आप अपने बिजनेस इनकम में डेप्रिसिएशन लेंगे? यस, यू ऑल आर राइट। ओनली बिजनेस यूज को हम उसमें कंसीडर करेंगे, रिमेनिंग जो है वो आपकी इधर एक्सपेंडिचर्स अलाउड में नहीं आएगा। इसी तरह इनिशियल अलाउंस 25% इनिशियल अलाउंस विल बी अलाउड ऑन द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टैक्स रेट्स के बारे में। टैक्स रेट्स सेम नहीं है सैलरी के लिए और बिजनेस इंडिविजुअल के लिए, इसमें काफी फ्लक्चुएशन या काफी डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। सैलरी स्लैब्स की बात करें तो वो काफी ज्यादा थे, 10-12 थे, जबकि हम रिड्यूस होके 8 के ऊपर आ गए हैं। और लेकिन यहाँ पे भी टैक्स जो रेट है वो मैक्सिमम 35% है, और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए जो है वो 600,000 की लिमिट है फॉर 0% टैक्स। बट एक तरह का बीच में बिजनेस इंडिविजुअल और सैलरीड इंडिविजुअल के लिए अलग से टैक्सेशन रखी गई है। 400,000 तक बिजनेस इंडिविजुअल के लिए एग्जाम्प्ट है, लेकिन 600,000 के लिए सैलरीड इंडिविजुअल के लिए एग्जाम्प्ट है। सो ये डिफरेंस इस वजह से रखा गया है क्योंकि बिजनेस इंडिविजुअल को ज्यादा टैक्स लगता है। अब इधर अगर बात करें तो मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जी ये तो सीधे सीधे बायसनेस है कि बिजनेस इंडिविजुअल को ज्यादा टैक्स किया जाएगा, सैलरीड इंडिविजुअल को कम टैक्स किया जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सैलरीड इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं, जबकि बिजनेस इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं। बिजनेस इंडिविजुअल को ज्यादा टैक्स किया जाता है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। मेरा भी एक ऐसा ही ओपिनियन है कि जी ये बायसनेस है। बट द थिंग इज, हमारे बिजनेस इंडिविजुअल जो हैं उनकी इनकम मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉपर अकाउंटिंग और प्रॉपर रिकॉर्ड ना होने की वजह से उनको ज्यादा टैक्स किया जाता है। और सैलरीड इंडिविजुअल क्योंकि एक कंपनी से या किसी भी एम्प्लॉयर से अपनी सैलरी ले रहा होता है, थ्रू बैंकिंग चैनल ले रहा होता है, उसकी विद होल्डिंग पूरी हो रही होती है और वो टैक्स इन एडवांस पे कर रहा होता है। टैक्स इवेजन के चांसेस बहुत कम है, इस वजह से उसको कम रेट पे टैक्स किया जाता है, जबकि इधर ज्यादा टैक्स रेट लगाया जाता है। इफ वी लाइक गो थ्रू, तो हम अगर ये देखें कि एक पर्सन जो 6 लाख रुपया अर्न कर रहा है थ्रू सैलरी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है।
लेकिन जो सेम पर्सन अगर वो बिजनेस इनकम से अर्निंग करता है तो वो 10,000 रुपीज पर एनम टैक्स दे रहा है। इसी तरह हम डिफरेंट स्लैब्स में देखते हैं कि कई जगह पे तो मतलब डबल टैक्सेशन की जा रही है, डबल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई हो रहा है। जैसे 12 लाख रुपए अर्न करने वाला सैलरीड इंडिविजुअल 30,000 टैक्स दे रहा है, जबकि बिजनेस इनकम वाला 70,000 टैक्स दे रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखें तो 6 मिलियन के ऊपर 15%, ही इज पेइंग 20%। और अगर हम 10 करोड़ वाले बंदे की भी बात करें तो ही इज पेइंग 30.17% एंड द बिजनेस इंडिविजुअल इज पेइंग 34.12%। तो ये डिफरेंस जो मेन रीजन है इसकी वो यही है कि इसके पास इवेजन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये एडवांस में इनकम टैक्स कुछ नहीं पे करता। कुछ कंपनीज जिनका साइज बहुत बड़ा हो गया वो एडवांस इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं, लेकिन आम जो भी पर्सन काम कर रहा है एज इंडिविजुअल वो एडवांस टैक्स बहुत कम दे रहा होता है। दूसरी बात यह है कि वो अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहा होता है। वी ऑल नो द फैक्ट्स। तो इसी वजह से ज्यादा रेट ऑफ टैक्स अप्लाई किया गया है। So let's talk about the hot topic capital gains. तो कैपिटल गेन सबको पता है कि जी जो आपकी सेल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स है उसमें से लेस कर दे परचेज कॉस्ट तो कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है। अब विकिपीडिया भी सेम इसी डेफिनेशन के ऊपर चलता है और इसके स्कोप में वी टॉक अबाउट द कैपिटल गेन इज on immovable properties and share in securities. Immovable properties में basically ज़्यादातर आपके जो assets हैं, property, plant, properties उसके बारे में डिस्कस करते हैं। share and securities ज़ाहिर सी बात है shares और securities पे डिस्कस करता है। अब इसका स्कोप स्टॉक्स इन ट्रेड पे नहीं है। उसकी रीजन ये है कि स्टॉक्स जो हैं वो हमें IAS 2 के अंदर हम सब जानते हैं कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे आपने रखने हैं। अब अगर स्टॉक्स को आप कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स करना शुरू कर देंगे तो इट मींस कि आप तो हर टाइम कैपिटल गेन टैक्स ही पे करते रहेंगे और इनकम आपकी जो है वो दूसरी तरफ से रिड्यूस होती रहेगी। अब कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएट किया। पहले जो कैपिटल गेन टैक्स था ये काफी डिफरेंट था। अब इसके ऊपर डिफरेंट रेट्स अप्लाई किए गए, कुछ उनके लिए टाइम लिमिट रखी गई और कैपिटल गेन्स को अलहदा से टैक्स करने की रीजन भी यही थी कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा जो था वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते थे और उसके ऊपर टैक्स कहते थे कि जी ये तो कैपिटल गेन है, या CBT का पहले कॉन्सेप्ट था उसके अंदर इसको टैक्स किया जाए, तो वो बहुत लो रेट टैक्सेशन थी। इसको अब एक प्रॉपरली चैनल के थ्रू टैक्स करने के लिए कैपिटल गेन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि एक प्रॉपर्टी जो आप परचेज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी कितनी है। अगर आपका वो बिजनेस है तो जाहिर सी बात है वो स्लैब्स के ऊपर टैक्स होना चाहिए। अगर वो आपका बिजनेस नहीं है और आप वैसे ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग रेट्स होने चाहिए, सेम एज इन UK। तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट रख के उसका टाइम लिमिट इंक्रीज किया गया ताकि इसको प्रॉपर्ली टैक्स किया जा सके। अब यहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी की होल्डिंग पीरियड 4 इयर्स रखी गई। अब 4 इयर्स में जो गेन है उसको हर ईयर 25% से रिड्यूस किया जाता है ताकि उसको टैक्स किया जा सके। इसी के साथ इसमें कैपिटल गेन्स के स्लैब्स भी डिफाइन किए गए कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर एक पर्सन अप टू 5 मिलियन अर्न कर रहा है तो उसके ऊपर 5% रेट लगेगा। 5 मिलियन से 10 मिलियन पे जा रहा है तो 10% रेट लगेगा। 10 मिलियन टू 15 मिलियन जा रहा है तो 15% रेट लगेगा। 15 मिलियन से अबव उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। अब एक मेरे भाई ने क्वेश्चन यहाँ पे किया था कि इन केस ऑफ he received a gift from his father, is it taxable or not? तो यहाँ पे उसी की डेफिनेशन है, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस और गिफ्ट फ्रॉम डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव्स वो टैक्स एग्जम्प्ट है। उसके लिए प्रॉपर आपके पास प्रूफ होने चाहिए, प्रॉपर आपको उसकी कंप्लाइंस करनी है तो वो फिर आपके लिए एग्जम्प्ट होगा। अगर आप गिफ्ट या जो है वो किसी थर्ड पार्टी से यानी डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव से रिसीव नहीं करे तो दैट इज टैक्सेबल। अब इनहेरिटेंस और गिफ्ट के टाइम के ऊपर
जो उसकी एक्विजिशन डेट है वही एक्विजिशन डेट कंसीडर की जाएगी, सेम वही डेट कंसीडर की जाएगी, और 4 इयर्स कैलकुलेशन के लिए वही एक्विजिशन डेट को कंसीडर किया जाएगा। सेम आगे अगर हम बात करें तो एक्विजिशन डेट के ऊपर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, और उसी को अगर आप देखें तो 25% रिड्यूस किया जाएगा। 25% रिड्यूस करने का मतलब ये है कि आपका एक प्रॉपर्टी आपकी उसकी कॉस्ट जो थी वो 1 करोड़ पे थी और अब वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सेल हो रही है, तो यू एक्चुअली अर्निंग कैपिटल गेन ऑफ 1 मिलियन। अब इस 1 मिलियन को अगर आपने उस प्रॉपर्टी को होल्डिंग पीरियड आपका 1 ईयर था तो 1 million will be reduced by 25%, that is 750,000 will be taxable, and after each year 25% वो reduce होता रहेगा। अगर 4 years से पास करता है तो your capital gain, taxable capital gain is 0। तो इसके बाद अगर हम देखें तो 1 मिलियन को रिड्यूस करके 0 कर दिया गया। अगर वो 7.5 लाख रुपए आपका मतलब 1 साल के बाद आप सेल कर रहे हैं और 7.5 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल बनता है, तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। what kind of proof? So you need a gift deed in case of gift, और आपका जो अगर कैश में आ रहा है तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आना चाहिए, गिफ्ट डीड प्रॉपर होनी चाहिए और सारे उसके जो लॉ के रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है, मतलब प्रॉपर प्रूफिंग और प्रॉपर चैनल की तरह चलना है। और जो आपका डॉक्यूमेंट है, अगर फॉर एग्जांपल आपको गिफ्ट में प्रॉपर्टी आई है तो जो प्रॉपर्टी आई है उसके लिए आपको रजिस्ट्री करवानी है एज प्रॉपर, जिस तरह किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। सो वी गॉट सम क्वेश्चंस हियर। You sell property to your uncle. Okay, uncle means if I ask a counter question to you, uncle means okay. If you talk about your chachu, he's not your direct blood relative. He's blood relative to your father, not to yours. So वो taxable होगी। Yes, the question is कि अगर 20 साल पहले खरीदी की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आप सेल करते टाइम कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? तो नहीं, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, अलबत्ता उसके ऊपर जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई होगी। कार गिफ्ट फ्रॉम वाइफ टू हस्बैंड definitely is exempt. We gift, father he gift. Right, so if you have proper trail, like आपने अपने ब्लड रिलेटिव को ट्रांसफर किया और उससे आगे फिर ब्लड रिलेटिव को ट्रांसफर हुआ, तो ये तो ब्लड रिलेटिव को ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इट्स एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। If the value of the property is increasing every year onward, so my friend, it's the case, आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं इट्स ऑलवेज एप्रिशिएटिंग इन पाकिस्तान, तो आपका कैपिटल गेन ही आएगा। इसके अलावा बात ऐसी है कि वो अगर आप 4 साल उसको होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। अगर आप उसको 4 साल से कम होल्ड करते हैं तो उसके ऊपर 25% रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको। जितना गेन बाकी बचेगा टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर इन बैंड्स के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करना पड़ेगा। Basis on withholding tax on sale of property is will be covered in our withholding tax session, but for your concern it's in 236 section, और seller के ऊपर भी टैक्स अप्लाई होता है और बायर के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो its rate is 1% for filer and 2% for non-filer. So let's move towards the next. If we talk about the share and securities, the gain on share and securities is also taxable.
if it is acquired less than 1 year, if it is acquired more than 1 year but less than 2 years, and till July 1, 2013, it is taxable at the rate of 15% for filer and 20% for non-filer. अगर उसकी एक्विजिशन डेट आपकी 1 जुलाई से पहले की है तो वो exempt from या वो taxable free from tax हो गए. Right. So let's move toward the income from other sources. So income from other sources are those incomes which are not covered in like salary में नहीं fall करते, business में नहीं fall करते, capital gain में नहीं fall करते, income from property में fall नहीं करते, तो वो income from other sources में आते हैं. इसमें mainly आपके dividend है, royalties हैं, profit on debt है, ground debts है, मतलब जो भी चीज आपकी किसी और में categorize नहीं हो रही, it will be covered in this head. So इसमें deductions allowed जो हैं वो आपकी वही हैं जो मतलब आपकी pertaining to that particular income है. आपको ज़कात allowed है, depreciation और amortization charge under section 22 and 24 is allowed, और same वही rule जो business के लिए थे वही यहाँ पे apply होंगे. So मैं questions लेना चाहूँगा अभी. Let's start from, if the share is held for a period less than 1 year, is capital gain tax applicable or exempt? Yes, it is applicable. The first slab defines that holding period is less than 1 year, so 15% on the capital gain. No, my friend, it's not 30%. लॉ डिफाइन इट एज 20%. सब जगहों के ऊपर आपका फाइलर और नॉन फाइलर का सेम डबल रेट नहीं चलता. यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली इसको बता दिया है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम टैक्स पेयर एज एम्प्लॉय टू टैक्स पेयर फॉर बिजनेस इनकम? इट्स वेरी सिंपल. अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहे हैं और अब आपने बिजनेस में जाना है तो यू नीड टू फाइल योर 181 फॉर्म अगेन, एंड उसमें बिजनेस कैटेगराइज करें आप, और उसके बाद से आप बिजनेस इनकम के अपने जो आपकी अभी करंट जो आपके पास फॉर्मेट अवेलेबल है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, दैट इज लाइक मोर देन सफिशिएंट कि वो हर एक चीज को आपकी कवर करता है. In the next session when we talk about the income tax return filing, you will see कि आपकी किसी भी तरह की इनकम है वो वहां पे जो है वो कवर होती है. CGT will be on seller because capital gain is earned from the seller, not by the buyer, because वो तो अभी उसकी cost है ना, purchase cost है. Capital gain is actually the difference between the selling cost and the purchase cost. Buyer and seller both pay withholding tax, because withholding tax का जो इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर अप्लाई करना है उससे दो बेनिफिट होते हैं. एक तो आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं, दूसरी चीज ये कि आपकी जो रिकॉर्ड जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली उसका रिकॉर्ड एफपीआर के पास जा रहा है थ्रू विदहोल्डिंग टैक्स. तो ये एक काफी अच्छा सा सिस्टम बन गया टैक्स कलेक्शन के लिए. बट देयर आर सम कंसर्न्स लाइक कि जी नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर डबल रेट लग रहा है, तो some of the non-filer do not bother on it. But ये सिस्टम जो है ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एफपीआर अपनी ग्रिप रख सके. इसके लिए विदहोल्डिंग टैक्स दोनों को पे करना है. एक बंदे के पास इफ आई टॉक अबाउट ट्रेल, तो हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में भी 22 लाख फाइलर हैं. 22 करोड़ अवाम में से 22 लाख फाइलर हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हर रोज हो रही है. Now, how to cater this problem? हर बंदा प्रॉपर्टी तो परचेज कर रहा है, बट लेकिन उसकी पहले से कोई ऐसी स्कीम अवेलेबल नहीं थी कि डायरेक्ट आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये क्या ट्रांजैक्शन चल रही है. ऑल्दो उसके स्टैम्प ड्यूटीज और सब पे होती थी, लेकिन एफबीआर को रिकॉर्ड नहीं जाता था. सो दे इंट्रोड्यूस दिस स्पेसिफिक
स्कीम कि अब उनके पास रिकॉर्ड लाजमी जाएगा, बिकॉज जब आपको चलान बनाना होता है तो आपके CNIC पे बनता है, और CNIC उनके पास जाता है तो दे नो कि यू हैव सम मनी एंड यू आर डूइंग दिस ट्रांजैक्शन. This one is little interesting. Register everyone. Okay, we have some question like, for gift deed is required to be made for the determination of acquisition cost and value to get the gain exempt. आपको at the time of gift you need to evaluate your asset, or fair market value is the acquisition cost. So नोटिस आता है जी, बेसिकली आता है इसीलिए तो ये जो है ये स्कीम अनाउंस की गई है, विद होल्डिंग की जाती है. दे आर यूजिंग स्टैम्प्स, लेकिन लाइक हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करना होता है. हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हम कोई ना कोई टैक्स पे कर रहे होते हैं, जिसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत जरूरी होता है. सम लाइक कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको बस यही पता है कि भाई ये रजिस्ट्री पे खर्चा आया, एक्चुअल उस खर्चे का ब्रेकअप क्या है वो उन्हें नहीं पता होता. तो if we move a little bit early like business income की तरफ, so there is a scheme for like taxing minimum tax under section 113. अब कई बिजनेस ऐसे हैं कि whose revenue is more but they are earning less profit. Basically वहाँ पे एक एलिमेंट ये शामिल हो जाता है कि they are like manipulating the records and overstate their expenses to reach at that profit which is low taxed or no taxation. So 113 आपको ये कहता है कि अगर आपका रेवेन्यू 10 मिलियन या उससे अबव है, so you will be paying a tax at the rate of 1.5% on the revenue. तो वो मिनिमम टैक्स है, मतलब अगर आपका लॉस भी आया है तो आपने ये टैक्स पे करना ही करना है. So keep in mind कि बिजनेस को प्लानिंग कैसे करनी है. Kindly guide about YouTube income. Well, this question, kindly guide about YouTube income, I'll refer Mr. Farooq for this. Well, thank you, Suleiman. जहाँ तक हमारी जो है इंटरनेट की, या जिसको आप कह सकते हैं ऑनलाइन इनकम की बात है, या जो हम इनकम जिसको आप कह सकते हैं कि ई-कॉमर्स के थ्रू हासिल करते हैं, या मुख्तलिफ जो है आपके चैनल्स वगैरह उनके थ्रू आती है इनकम यूट्यूब पे, तो जो वो है वो उसका जो है आपका जो बैंक का विदहोल्डिंग टैक्स है, जो वो बैंक में आती है उसके हिसाब से जो है वो टैक्स होता है, विदहोल्डिंग टैक्स के हिसाब से. लेकिन जो आपकी जो है क्या कहते हैं उसको, बाहर से इनकम आपकी आती है इधर जब आप विड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है. थैंक यू. So let's also talk about the exempt incomes. So if we talk about like, हमने इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बात की, हमने गिफ्ट इनकम के बारे में बात की, इसी तरह फॉरेन रेमिटेंस भी आते हैं. फॉरेन रेमिटेंस आर exempt from tax, but this government announced that कि अगर आपके पास फॉरेन रेमिटेंस are coming more than 5 million तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा. In the past history of Pakistan, foreign remittance are non-taxable, non-questionable. तो आप जितने मर्जी रेमिटेंस मंगवाएं, that are exempt from tax, और उसके ऊपर किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं होता था. तो most of the income, most of the people try to evade this thing, और उन्होंने मतलब अपनी वाइड सोर्स को बढ़ाने के लिए फॉरेन रेमिटेंस को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया. इस वजह से 5 मिलियन का थ्रेशोल्ड रखा गया कि इससे ऊपर जो आपकी इनकम आएगी वो आपको बताना पड़ेगा उसका सोर्स क्या है. एंड लाइक गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन अ ट्रैक कि 1 रुपया भी अगर बाइट से है तो उसका सोर्स बताना पड़ेगा, बिकॉज
we know all the routes and we have some idea about the money laundering and all that kind of certain things. और इसी वजह से like FATF ने KYC अनाउंस किया कि जी आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए. FPR भी उन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर चलता है and require you to have some records of your business in that level कि अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं तो आपके पास रिकॉर्ड है. अब सर्टेन कंडीशंस लगा दी गई कि जी आपने रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऐसे ऐसे करना है. इसी के साथ आपके ऑडिट्स ओपन किए जाते हैं जो रैंडम बेसिस पे भी होते हैं, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन पे भी होते हैं. सो काफी सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है इस बेस के ऊपर कि इसको किसी तरह से ऐसा किया जाए कि हमारा टैक्स नेट बढ़ सके. We are standing at 1% of like tax filers and 99% of the records. So कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लिए जाएंगे और जाहिर सी बात है कि हम ही में से कुछ लोग जो उनसे वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, बट अगर हम उनकी डीपली एनालिसिस करें तो वो बेसिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान है एंड गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स लाइक कि किसी भी तरह से हम ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ग्रे लिस्ट से निकल जाएं. लेट्स हैव सम क्वेश्चन अगेन. What about income from e-commerce? So the questions relating to like e-commerce, I refer to Farouk to answer these questions. Please, Farouk. Thank you, Officer Khan. Well, interesting question about e-commerce income. Well, it depends. अगर तो आपका बिजनेस सप्लाई ऑफ गुड्स का है तब भी आपका वो एज नॉर्मल जो जिस तरह आपका बिजनेस इनकम ट्रीट होता है उसी तरह ट्रीट होगा जिस तरह इन्होंने कहा कि वर्चुअल इनकम है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट वुड बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस एज वेल फ्रॉम सर्विसेज बिजनेस. अच्छा, उसके बाद एक तीसरी चीज आ रही है आजकल कि जिस तरह आप कह लेंगे कमीशन बेस, यानी कि काम कोई कर रहा है पीछे जो है ऐप है उसके थ्रू काम कर रहे हैं. देयर आर सर्टेन एप्स एज वेल इन दिस रिगार्ड जो उसके ऊपर इनकम होती है या अर्निंग होती है, दैट वुड बी अ कमीशन. सो दैट वुड बी चार्ज एट 10%, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्लीज क्लैरिफाई इफ आई एम रॉन्ग. No, you are always right. Thank you. So over to Hafiz Sulaiman. Right. So this is why people hesitating. Can I get this? Okay, for the business income and deductions, there was allowed deduction of 250,000 under one head and cash expenses under 25,000 are allowed. What is the difference between the two? Actually, the difference between these two are 250,000 is the limit for a single head of account. Like if you are doing business और आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 2.5 लाख से ज्यादा कैश के ऊपर कैश एक्सपेंसेस करते हैं तो 2.5 लाख तक तो आपको एग्जेम्प्ट होगा, यानी आप एग्जेम्प्ट कह रहा हूँ टैक्स में आपके लिए डिडक्शन अलाउड होगी, लेकिन उससे ऊपर के लिए वो आपके इनकम में ऐड बैक कर देगा, उससे आपका टैक्सेबल इनकम ऊपर चली जाएगी और आपको टैक्स किया जाएगा. बेसिकली ये कंप्लायंस इस वजह से है ताकि सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल रूट हो. अब इफ वी टॉक अबाउट द 25,000 लिमिट, 25,000 लिमिट इज फॉर अ सिंगल वेंडर और सिंगल इंडिविजुअल. अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आप 2.5 लाख तक तो जा रहे हैं लेकिन आप वहां पे 20 वेंडर्स के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो ईच वेंडर is have limit कि आप उसके साथ कैश में ट्रांजैक्शन 25,000 तक कर सकते हैं. उससे ऊपर जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो थ्रू बैंकिंग चैनल ही रूट होनी चाहिए. So foreign remittance are exempt and will remain exempt, I think. I don't think they will be taxable, but the thing is where it is coming from. Like source तो पता चले ना कि भाई कहाँ से आ रहा है, genuine remittances आ रही हैं या फिर route की जा रही हैं खुद से.
डेफिनेटली इसी कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेजमेंट के लिए ये लिमिट्स लगाई गई हैं और इन्हीं लिमिट्स को मतलब लगाने के बाद कैश ट्रांजैक्शंस को कम से कम किया जा रहा है, बिकॉज कैश ट्रांजैक्शंस प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखती, थर्ड पार्टी उनको वेरीफाइबल, थर्ड पार्टी के लिए वेरीफाइबल नहीं है और थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई नहीं कर सकती। For transactions routed through banking channels are exempt. It depends कि वो ट्रांजैक्शन क्या है, उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स की implications है। आपके लिए ये लिमिट बिजनेस में एक्सपेंसेस के लिए, मैं जरा दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इट एक्चुअली सेड कि अगर आप कैश ट्रांजैक्शंस करना चाह रहे हैं तो सिंगल हेड में आपके पास 250,000 की लिमिट है, मतलब आप 2.5 लाख रुपए तक कैश में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसकी जो डिडक्शन है वो अलाउड होगी। इसमें फर्दर कैप लगाई गई कि आप सिंगल वेंडर के साथ 25,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। So I think it will clear your point. देखें, जिसके नाम से आपने टैक्स पे किया है वो बेसिकली उसका टैक्स है, आपका टैक्स नहीं है। So ask your questions. I designed कि मुझे बहुत सारे questions मिलने वाले हैं। So for tax refunds, I will refer Farooq. थैंक यू हाफिज सुलेमान। वेल, जिस तरह आपको शुरू में बताया हारून साहब ने कि बेसिकली जो ये हमारा इवेंट है, ये जो वेबिनार है, that was solely conducted for know-how or basis of you can say income tax, sales tax, withholding tax, and particularly filing of income tax returns and sales tax returns and withholding tax statements. वेल, जहाँ तक आपका है रिफंड्स का ताल्लुक, ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसके अंदर अब कुछ बिजनेसेस हैं जिनको 65D सेल्स टैक्स की एग्जम्पशन मिली होती है, ठीक है, तो वो उनका जो है एग्जम्पशन सर्टिफिकेट होता है, उसके बावजूद अगर उनका टैक्स डिडक्शन होती है दैट वुड बी रिफंडेबल। अच्छा, उसके बाद जो आपके कह सकते हैं आप इंपोर्ट वगैरह के ऊपर जो टैक्स होता है वो आपका रिफंड होता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, उसकी रिफंड की एप्लीकेशन फाइल होती है और उसके बाद आपको मुतलका जो आपका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उसको आपको प्रॉपर अपना सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड करना होता है कि भी आपका इस जगह पर इतना इतना टैक्स कटा है, दैट वुड बी आल्सो प्रिपेयर्ड ईयर वाइज, और वो देखने के बाद उसके बाद वो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं फ्रॉम देयर ओन सिस्टम कि वेदर ये सब कुछ ठीक है या नहीं है। एंड आई विल टेल यू बिट मोर इन व्हाइल वी वर डिस्कसिंग सेल्स टैक्स रिटर्न, वहां पे आपको पता चलेगा जो हमारा इंपोर्ट के लिए सिस्टम यूज होता है आपका कस्टम्स का, वो है जो है वीबॉक का सॉफ्टवेयर है, उस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वो उसके थ्रू होता है, और वीबॉक और एफबीआर का जो पोर्टल है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जब हम उसके अंदर अपनी इंपोर्ट को लोड करते हैं तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विद योर वीबॉक सॉफ्टवेयर। सो वो जो है उसको सिस्टम में किस तरह वेरीफाई करते हैं that would be a different thing, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, टैक्स डिडक्टेड ओवर योर यूटिलिटी बिल्स, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम योर कैश विड्रॉल्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन इंपोर्ट्स, that all will be all of these proofs will be provided to the you can say कि आपका जो भी कमिश्नर होता है उसका इनलैंड रेवेन्यू का, आपकी जोन का, आपके आरटीओ में उसको आप प्रोवाइड करते हैं। सो उसके बाद उनकी बेसिस पे आफ्टर वेरिफिकेशन वो जो है आपका टैक्स रिफंड अंडर सेक्शन 170 जो है वो उसको अलाउ करता है और उसका जो है वो डिसीजन देता है, और उसके बाद वो जो है डायरेक्ट जो एज पर रिसेंट जो इनकी आई है एफपीआर की
इंस्ट्रक्शन आई हैं वो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वेदर के आपको चेक मिले। पहले क्योंकि ये होता था कि आप ऑर्गेनाइजेशन को क्रॉस चेक इशू होता था, लेकिन अब क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेट बैंक से मुतलका ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होता है। और जो इसके अंदर जो आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन है वो सबसे ज्यादा वही है कि मुख्तलिफ जो है आप इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन वो जो है आपका टैक्स डिडक्टेड सोर्स का मुतलका जो रिकॉर्ड है या मुतलकी जो वेरिफिकेशन है वो नहीं करवा सकती है अपने क्वेश्चन इनलैंड रेवेन्यू को। इस वजह से जो है ये थोड़ा सा डिले का शिकार होता है। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। ओवर टू हाफिज सुलेमान। Okay, someone asked what is the difference between the current slide and salary income previous slide, right? So जैसा कि पहले भी explain किया है कि there is tax rate differences for salary income and business income. Salary income को lower rate पे tax किया जाता है because they have proper channels, proper withholdings and all that. So उधर tax evasion के chances कम है। बिजनेस इनकम को हायर रेट पे टैक्स किया जाता है बिकॉज देयर आर मोर कंसर्न्स फॉर टैक्स इवेजंस, मैनिपुलेशन इन रिकॉर्ड्स एंड बिजनेस इंडिविजुअल जल्दी से टैक्स नहीं देता और एडवांस टैक्स भी नहीं पे कर रहा, तो उसको हायर रेट पे टैक्स किया जाता है। 5 जगह पे हमने एक थ्रेशोल्ड लगाया कि 6 लाख कमाने वाला पर्सन सैलरी इनकम में कितना टैक्स देगा और अगर वही बिजनेस इंडिविजुअल हो वो कितना टैक्स पे कर रहा है। सो इसी तरह 12 लाख रुपए पे 60 लाख रुपए के डिफरेंस क्या है, 1 करोड़ रुपए पे क्या डिफरेंस है और 10 करोड़ रुपए पे क्या डिफरेंस है। So we came to know that business individual is taxed at higher rate where salaried individual is taxed at lower rate. 25,000 limit would also apply to any single transaction also. Repeated question, I said 25,000 with a single vendor in 1 year. So अगर आप एक साल में किसी वेंडर के साथ 25,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन एनी केस आप उसे 5-5 रुपए की भी ट्रांजैक्शन करें, 25,000 से एक्सीड कर रहा है, you need to go in through banking channel if you want to deduct that expense from your profit. ओके, टैक्स प्लानिंग के ऊपर मतलब अगर आप बात करें तो टैक्स प्लानिंग यहीं से शुरू हो जाती है कि हाउ यू नीड टू कैटेगराइज योर इनकम। फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी इनकम के साथ अर्न कर रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो आपको उसको रेगुलर इनकम में लेके जाना है या सैलरी के स्लैब्स में ही टैक्स करना है। इट डिपेंड्स कि अगर आप 6 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं और उसके ऊपर आप 2 लाख रुपए की 2.5 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ रही है तो उसको रेगुलर इनकम में कैटेगराइज करना है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ही में ही टैक्स होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशंस। अब टैक्स क्रेडिट्स की बात करें तो यस देयर आर टैक्स क्रेडिट्स। फॉर एग्जांपल सैलरीड इंडिविजुअल के लिए मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है अप टू 10%। इसी तरह ज़कात और डोनेशंस के बारे में भी टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप ज़कात पे कर रहे हैं तो दैट इज डिडक्टेबल फ्रॉम योर salary, right? And if you donate if you donate to any trust तो आपको 2 तरह की जो हैं वो क्रेडिट्स मिल सकते हैं। वन इज कि आपको आपकी टैक्स में से टैक्स क्रेडिट मिलेगा, दूसरा आपको अलाउंस मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंस, राइट? So there is actually tax planning covered in this session as well. If you are required more, ask more question for your concerns. EOBI actually is not the part of tax. It's a separate employee old benefit allowance. So इसका मेन क्राइटेरिया मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे ये इसका पार्ट नहीं है। इसमें 60 रुपीस आपके एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन है एंड मल्टीप्लाइड बाय 5
आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है। So what question, guys? Questions. We all are here to answer your questions. Yes, it is. It is actually adjustable and refundable as well if you have zero tax liability. For zakat paid by employee, I refer to Sikandar. Well, I think Sikandar is not available. Okay. As far as the question is zakat paid by employee. So, as I have already told you, that zakat is a deductible, you can say, allowance, and that would be deducted from your taxable salary or your taxable income. So, the question is how this will be deducted. Well, there are two types of zakat. One, if you have, you can say, some TDRs or term deposit receipts or profit from banks, or you have share income, or you can say you have dividend from different organizations, then there is zakat around 10% already deducted when dividend is being issued. So that is your deductible allowance, and that will be directly deducted from your income. Thank you. I hope that answers the question. Over to Hafiz Suleiman. Right. So we have many questions relating to withholding tax. Actually, those questions will be covered in withholding tax session. Pay 35% tax on everything and no other tax. So what does it mean? Can you rephrase the question? Actually, 6-digit program में rephrasing का भी एक session था. I remember that. Rephrase the question. It will probably the next session. If you want this presentation, ACCA will share with you. If you want, please raise requisition to like ACCA, and they will provide you this PowerPoint presentation. For corporate tax matters, I'd refer Farooq to elaborate something. Actually, this session cover corporate as well. The same will apply. Only the differences with the tax rates. If we talk about like they are taxed at 29%. So Farooq I hand it over to Farooq for corporate tax matters. Well, thank you, Hafiz. As far as corporate tax matters are concerned, that are being taxed at higher of, you can see 1.5%, or there is some change as we go for, I think 1.5% is for
private limited, and for public limited, that is I don't remember, it's I think around 1%. With minimum tax that is of your total turnover. So if we go for this business income, that is also taxed on over profits. जो आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं, बिजनेस इनकम, उसके ऊपर प्रॉफिट्स के ऊपर ये जो 2% या 6% या 20% जो टैक्स हैं ये प्रॉफिट्स के ऊपर होते हैं. वेल देयर इज अदर वे कि आप अगर इसको आप कह लेंगे, जिसको आप कह लेंगे टैक्स प्लानिंग कह लें या टैक्स मिनिमाइज करना कह लें, तो वो ये होता है कि आप जो अपना मिनिमम टैक्स है 1.5% वाला, उसको ऊपर आ जाते हैं बाय रेजिंग योर you can say booking your expenses, और you can say कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो भी है वो आप उसके अंदर अपने बिजनेस में शो करके उसको आप बेहतर कर सकते हैं. अपनी जो मिनिमम टैक्स है उसकी तरफ आ सकते हैं. दैट वुड बी अ बेटर वे. ओके. अच्छा, और जहां तक रह गई है बात इसकी, आपका जो है बिजनेस की, इसके अंदर होता है मिनिमम टैक्स का एक कॉन्सेप्ट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 1.5% है, एंड फॉर यू कैन से जो आपके है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनके लिए आई थिंक ये कोई डिफरेंट परसेंटेज है इसकी थोड़ी सी. वो आई रियली कांट रिमेंबर. हाफिज सुलेमान विल गाइड यू ऑन दिस रिगार्ड. जो बिजनेस इनकम है वो होती है दो तरह से टैक्स. एक तो आपने जो जिस तरह ये आपके सामने स्लैब अपना स्लैब आ रही है सेक्शन 18 की, इसके मुताबिक जो ये है आपकी स्लैब, ये आपको बता रही है कि आपका टैक्सेबल प्रॉफिट इतना होगा. तो फॉर एग्जांपल अगर आपका टैक्सेबल प्रॉफिट 10,000 है, दैट वुड बी टैक्स्ड एट अ रेट ऑफ 2%. अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है कि आपने अपना मिनिमम टैक्स भी देखना होता है, और जो बिजनेस होता है वो हमेशा हायर ऑफ टैक्स पे होता है, हायर ऑफ योर 1.5% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू और योर टैक्सेबल प्रॉफिट एज पर द परसेंटेज जो भी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है. सो इसको हम जो है टैक्स प्लानिंग में लेके जाते हैं कि हमने इसको किस तरह करना है, कि वेदर हमने जाना है मिनिमम टैक्स की तरफ और कि हमने जाना है नॉर्मल टैक्स की तरफ जो बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर आता है. पहले ये था, इस साल से तो आई थिंक बल्कि 2020 से ये खत्म हो गया है. ये सारा कुछ ही आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गया है. पहले था ये फाइनल टैक्स रिजीम में, जो हमारे इंपोर्टर हैं वो फाइनल टैक्स रिजीम में थे. वो इसको फाइनल टैक्स के अंदर जो उनका टैक्स डिडक्टेड सोर्स होता था ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मटेरियल और ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी आइटम्स और जेनसेट्स, वो उसके अंदर जो है अपने वो सारा पे करके, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर जो है टैक्स डिडक्शन हो जाती है, उसी को वो शो करके तो अपना जो है बिजनेस प्रॉफिट्स हाई रखते थे, और उसकी वजह से उनको टैक्स लायबिलिटी भी नहीं देनी पड़ती थी, एज दे हैव सफिशिएंट रिफंड्स और सफिशिएंट टैक्स क्रेडिट्स ओवर देयर नेम. इस वजह से भी ये काफी उनके लिए इजी था. जबकि इस दफा जब इन्होंने ये इसको ले आए हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में, सो इस दफा उनके लिए भी थोड़ा मसला बन गया है. वो कह रहे हैं कि अब जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है एफबीआर, ये इसको ऑब्वियसली कंपैरेटिव में लेके जाएगा कि लास्ट ईयर इन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, इस साल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इस साल एफटीआर वाला जो है सिस्टम वो खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने, और सब कुछ जो है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में चल रहा है. होप दिस विल आंसर द क्वेश्चन. थैंक यू ऑफिस सुलेमान. Okay, so actually मेरे दोस्त फारूक ने जो है वो विद होल्डिंग टैक्स को भी सारा डिफाइन किया है, फाइनल टैक्स रिजीम और मिनिमम टैक्स रिजीम को. बेसिक मिनिमम टैक्स रिजीम को कह लें कि एंटी अब्यूसिव यूज किया गया उन लोगों के अगेंस्ट जो अपने रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करते थे और टैक्स नहीं देते थे, लॉस मेकिंग करते थे, या लोअर टैक्सेशन स्लैब्स के अंदर फॉल करने के लिए वो अपने एक्सपेंसेस को या तो ओवरस्टेट करते थे या अपनी इनकम्स को अंडरस्टेट करते थे. तो इसको कैटर करने के लिए एफबीआर ने अपने रेवेन्यू के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा दिया 1.5%. The rate was 1.2% in last year, and it was started from like 0.75%, then increased to 1%, then 1.25%. Now it is 1.5%.
तो ये एक एंटी अब्यूसिव रूल है उन लोगों के लिए कि जो मतलब लॉस मेकर बन जाते थे या अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करते थे, तो अब उन्हें मिनिमम इतना टैक्स तो देना ही देना है। तो बेसिक इन सब के पीछे रीजन ये लास्ट डेकेड में काफी रैपिडली ग्रो किया है ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी, और इसमें मतलब बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस की गई हैं टू कलेक्ट टैक्स। बट अभी भी काफी जगह पे हमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है, जैसे टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा रहा, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को हरास किया जाता है कि दे पे मोर टैक्स, और अपने जो भी उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा ऑडिट्स ओपन किए जाते हैं, बजाय इसके कि वर्क किया जाए उन लोगों के ऊपर कि जो टैक्स नेट में अभी नहीं है। Yes, so someone asked a question, normal tax regime and final tax regime. So normal tax regime के बारे में हमने भी बात की, ये slab rates जो उनसे normal tax regime में आते हैं, whatever you earn, you will be taxed at different rates. But फाइनल टैक्स regime क्या कहता है कि फाइनल टैक्स regime ये कहता था, अब बेसिकली फाइनल टैक्स regime को कन्वर्ट कर दिया गया मिनिमम टैक्स regime में। फाइनल टैक्स regime और मिनिमम टैक्स regime को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मल टैक्स regime तो हमने ये सारा एक्सप्लेन किया कि जी नॉर्मल टैक्स regime में आप जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसके ऊपर स्लैब रेट्स लगेंगे और आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। फाइनल टैक्स regime ये कहता था कि जी आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर आप सर्टेन टैक्स पे करेंगे, जैसे सेक्शन 153 के अंदर 1A, 1B, 1C में वो कहता है 1A के अकॉर्डिंग 4.5% ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, दैट विल बी कवर्ड इन विदहोल्डिंग टैक्स। सो 1B में वो कहता है कि जी सर्विसेज पे 10% टैक्स, 1C में वो कहता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर टैक्स, वो डिफरेंट रेट्स अप्लाई है। अब जब आपने विदहोल्डिंग टैक्स पे कर दी है 4.5% पे, सो यू विल बी नो मोर टैक्स, और या इंपोर्ट स्टेज के ऊपर आपने जो टैक्स पे किया है नॉर्मली 6% के ऊपर पे करते हैं, वो आपका फाइनल टैक्स था, अब आपको और कोई टैक्स पे नहीं करना। सो ये वो लोग थे जिन्होंने इसको मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया कुछ लोगों ने, और प्रॉफिट्स को एक्स्ट्रापोलेट किया टू जनरेट सफिशिएंट फंड्स। बेसिकली हमारे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, आपकी टैक्स बुक्स कुछ और है और अकाउंटिंग बुक्स कुछ और हैं, उसी को मेंटेन करने के लिए ये टैक्स फाइनल टैक्स में जो जाते थे लोग, उन्होंने प्रॉफिट को ओवरस्टेट किया ताकि उनकी व्हाइट मनी ज्यादा जनरेट हो। सो एंटी अब्यूसिव रूल ये आया कि फाइनल टैक्स को मिनिमम टैक्स में कर दिया गया। अब मिनिमम टैक्स का मतलब ये है कि जो भी आप टैक्स एट इंपोर्ट स्टेज और विदहोल्डिंग के थ्रू पे कर रहे हैं, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, आपका जो कस्टमर है वो आपका विदहोल्डिंग 4.5% टैक्स आपका काट के जमा करवाता है, वो अब आपका फाइनल टैक्स नहीं है, मतलब अब आपने बस वही टैक्स नहीं भरना था, अब उसको कंपेयर किया जाएगा नॉर्मल टैक्स regime के साथ। अब अगर आपने टैक्स 4.5 लाख रुपए पे किया और आपका जो प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स 4,75,000 रुपया बन रहा है, तो आपको वो 4,75,000 रुपया या 475,000 पे करना पड़ेगा। बिफोर दिस फाइनेंस एक्ट 450,000 was the final liability, but now it converted into minimum। अब अगर आपका प्रॉफिट कम भी होता है और आपके लिए ये टैक्स ज्यादा बन रहा है, तब भी आपने ये मिनिमम तो ये पे करना ही करना है। सो ये एंटी अब्यूसिव रूल्स डे बाय डे डेवलप किए जा रहे हैं फ्रॉम लास्ट डेकेड और सो ऑन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक ऐसा सिस्टम दिया जाए कि जिसमें मतलब जो टैक्स की चोरी है उसको खत्म किया जा सके। So moving to next, hope this answer the question, final and minimum normal tax. So the question is active taxpayer list. Active taxpayer list is actually the concept introduced by FPR in Finance Act 2019. So इसमें क्या था, इससे पहले हमारे पास फाइलर एंड नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट डोरमेंट था। फाइलर कॉन्सेप्ट में ये था कि जो भी रिटर्न फाइल करता है और उसका स्टेटस ऑन e.fpr NTN एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है, उसको कुछ और टैक्स किया जाता था और नॉन फाइलर को डिफरेंट टैक्स लगाए जाते थे।
अब एक नई टर्मिनोलॉजी और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का। अब जो टैक्स पेयर करंटली अपनी लायबल टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है उसको ये स्टेटस मिलेगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का। एक पर्सन जो पिछले साल तक एक्टिव टैक्स पेयर या फाइलर था और उसने इस साल की रिटर्न नहीं की, दैट विल बी कैटेगराइज इन नॉन फाइलर, इन अदर वर्ड्स वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होगा। तो अल्टीमेटली उसके ऊपर डबल टैक्सेशन लगेगी, where his tax is deducted at 10%, now he have to face 20% taxation. Okay, for corporation tax rate is flat 29%. Yes, there is no slab rates, and the corporation profit or taxable income is taxed at 29% straightforwardly. और इसमें ये भी देखा जा सकता है कि when you are earning more in individual capacity, तो आपका जो tax rate है वो already 29% से बढ़ के अभी जो करंट स्लाइड ओपन है उसमें सैलरीड इंडिविजुअल के केस में 30.17% और बिजनेस इनकम के केस में 34.12% हो जाता है। Okay, I refer this question to Farooq about super tax and ACT. Please, Farooq, answer this question, or I'm shifting it towards. Okay, Sulaiman, thank you very much. Okay. As far as the question for corporation tax is concerned, there are mainly 4 categories under section 4. One is small company for 2021, that will be taxed at 22%. And there is a question of regarding tax rates. Kindly note it down. Small companies for 2021, that is the tax rate of 22%. अच्छा, उसके बाद जो banking companies हैं, they have a tax rate of 35%. अच्छा, उसके अलावा जो तमाम companies हैं, that would be taxed at 29%. अच्छा, जो इन्होंने क्वेश्चन किया ACT या अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स का, उसका जो है रेट अंडर सेक्शन 113C 17% है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को बताता चलूं मिनिमम टैक्स की, जिस तरह मैं पहले भी बात कर रहा था। जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज, सुई गैस कंपनीज, ये है पाकिस्तान एयरलाइन है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो आपकी डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, अच्छा जो लोग ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है वो रन कर रहे हैं, दैट वुड बी टैक्स्ड एट 0.75%। अच्छा, जो आपके that is the rate of minimum tax. Please, that is the rate of minimum tax, not your total profit or business income. That will be taxed over your total revenue. In case and as I have already told you, जो ये हमेशा higher of select करते हैं, higher of your business tax over your business profits or your minimum tax. So the next is distributors of pharmaceutical products, fast moving consumable goods and cigarettes, उनके ऊपर जो है 0.25% है मिनिमम टैक्स। पेट्रोलियम एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर भी 0.25% है। राइस मिल्स एंड डीलर्स, फ्लोर मिल्स के ऊपर भी 0.25% है। जो आपके मोटरसाइकिल डीलर हैं, जो अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, that would be explained जब मैं आप लोगों को सेल्स टैक्स जो है वो करवाऊंगा, that would be taxed at 0.3% मिनिमम टैक्स। अच्छा, इसके अलावा जो तमाम केसेस हैं उसके ऊपर मिनिमम टैक्स 1.5% ऑफ योर रेवेन्यू है, एंड दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 113 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, अभी क्वेश्चन किया गया सुपर टैक्स के बारे में। जो सुपर टैक्स है दैट इज ओवर योर बैंकिंग कंपनीज, एंड दैट जो है वो 4% है अंडर सेक्शन 4B। और इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जिनका नहीं होता या 20% से कम होता है उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनका अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, दैट वुड बी चार्ज्ड एट 5% मिनिमम टैक्स। थैंक यू वेरी मच। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। ओवर टू हाफिज सुलेमान। Actually, Farooq, the next question is also related to your e-commerce business.
Can you please read it out? Yeah, it's please mention the tax slabs for e-commerce business, any type of tax that is levied on the e-commerce business. Okay. As I have already told you, there are three mainly types of e-commerce businesses. One is there are service providers, and the other one is supply of goods. Both will be taxed at in your business income, and that would be taxed straight away from your business income. नो अदर यू कैन से कि आप इसका कोई और वो नहीं है, क्योंकि ये आप बिजनेस कर रहे हैं और आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर जो है वो टैक्स होगा। उसी तरह जिस तरह आपका बिजनेस इनकम के ऊपर नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट होता है, मिनिमम टैक्स होगा, या आपका प्रॉफिट के ऊपर जिस तरह टैक्स होता है वो होगा। अच्छा, सेकेंडली क्योंकि हमारा जो है रिटेल कंज्यूमर है और वो इसको जो है विद होल्डिंग टैक्स जो है उसका नहीं कर रहे एडजस्ट, तो वो हमारा एट द ईयर एंड जो हमारी टोटल गुड्स और सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड की होंगी उसके हिसाब से इसको करेंगे। अच्छा, जहां तक रह गई सर्विसेज की प्रोविजन की बात, इन केस ऑफ एओपी एंड इंडिविजुअल जो इसका टैक्स रेट है विद होल्डिंग टैक्स का रिडक्शन रेट है दैट इज 10%, और जो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स का है इन केस ऑफ इंडिविजुअल दैट इज 4.5%, and that is the rate for filers, not for non-filers. It would be doubled if the person is non-filer. I'll bet it will be, you can say कि जो आपकी है supply of goods वो उस पे 9% हो जाएगा, और आपकी जो सर्विसेज है उसके ऊपर ये आपका हो जाएगा 16%। अच्छा, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका अपना हाफिज सलमान? Not clear with withholding. Okay. Actually, withholding tax will be covered in the withholding tax session, but we give you answer what is not clear about withholding tax. Sorry? They are actually asking for the withholding tax, and No. withholding tax will be covered in the withholding tax session actually. More particularly. Right. So yes, these are the current tax rate slabs. So no exemption in online business. No exemption in online business. As I already told you, that would be taxed at 0.75%. So yes, that's the minimum tax. And exemption for technology companies. Any exemption for technology? If they are earning foreign remittances, yes, then these are exempt, but they must have proper banking channel. One is called PRC, price realization certificate, that is being issued by bank against each and every transaction that is being made from against foreign remittances from banking channel, and there is a withholding tax that is deducted by bank, but there is no income tax in this regard. So here is the main thing, because we are from a background where we studied UK taxation, so we need to unlearn that UK taxation and absorb the Pakistani taxation in us. UK taxation एक ही slabs provide करता है, आपकी जिस तरह की business income है, आपकी salary income है, आपको कोई rental income आ रही है, and all that enter into the main head taxable income. बट यहाँ पे आपकी हर चीज को अलग-अलग टैक्स किया जाता है। अब अगर हम बात करें बिजनेस इनकम और सैलरी इंडिविजुअल, वही सैलरी इंडिविजुअल अगर बिजनेस इनकम को भी ऐड कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई कैसे होगा? तो देयर इज लाइक जो आपकी इनकम ज्यादा है, अगर आप सैलरी ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो सैलरी स्लैब्स विल बी अप्लाइड टू यू, बट इफ योर बिजनेस इनकम इज मोर देन योर सैलरी इनकम तो बिजनेस स्लैब्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे। सो द मेन थिंग हियर इज कि हमें अपने आप को मोल्ड करना है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टैक्सेशन, और हमें ये फैक्ट जानना पड़ेगा कि विदाउट लोकल टैक्सेशन एंड लोकल नॉलेज ऑफ लॉज हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लाइक एवरी एम्प्लॉयर नीड कि आप टैक्स के बारे में क्या जानते हैं,
आप लोकल लॉज के बारे में क्या जानते हैं, एंड इफ यू डोंट, मतलब हमें अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाना है। एम्प्लॉयबल बनाने का मतलब ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट आपके एम्प्लॉय की हैं, क्या वो आप में है। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर एक गाड़ी लेने की, तो गाड़ी के अंदर में हम देखते हैं इज दैट लाइक इसकी इंजन कैपेसिटी क्या है, इसके अंदर एयर बैग्स हैं, इसमें टायर किस साइज के हैं, मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो व्हाई डोंट वी लाइक एनालाइज कि हमें इन सब चीजों को अपने अंदर शामिल करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट इट इज नॉट सफिशिएंट कि आपके पास नॉलेज हो से, because we three are the participant of last 6 digit program, and the main or the core thing is कि आप अपने अंदर कैसे डेवलपमेंट लाते हैं। अगर तो आप फ्लेक्सिबल अपने आप को बनाते हैं एंड यू डोंट से नो टू योर एम्प्लॉयर, अगर वो आपको कहता है कि ठीक है आपकी जेडीज तो ये हैं बट आई नीड यू टू डू दिस, और योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं और अपने आप को कितना फ्लेक्सिबल बनाते हैं। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क हार्ड। जिंदगी में मेरे टीचर ने कहा था 3 से 4 साल ऐसे गुजारने पड़ेंगे आपको कि जिसमें आपको लगेगा कि यार बस, बट दैट 3 to 4 years will actually the base of your future years। तो आपकी बेस क्या है, आपका रनवे कैसा है, आप रनवे पे कितना तेजी से निकलते हैं, दैट इज द कोर ऑफ द 6 digit program। This not only providing the skills but development of your own personality। So be in the position कि आप इसके सारे के सारे सेशंस अटेंड करें, 99% भी नहीं 100% अटेंडेंस को सिक्योर करें, एंड यू विल लुक अराउंड के आपको इसमें से ऐसे कंटेंट और ऐसी चीजें मिलेंगी और उसको अप्लाई भी करना है। सिर्फ ये नहीं सुन के चले गए और जाके बस कहा कि बस मेरे लिए तो ना, अपनी जिंदगी की वो चीजें अप्लाई भी करनी पड़ेंगी। इफ यू आर विलिंग टू चेंज योरसेल्फ, नो वन विल स्टॉप यू। बट वो कहते हैं ना कि खुदा भी उसकी जो चेंजेस है वो नहीं करता तब तक वो खुद ना चाहे। तो आपको खुद अपने अंदर ये चाह पैदा करनी है कि आपने अपने आप को चेंज करना है। Hope this session will help you. If any question you want to ask, you can ask, or you can even ask from like आप ACCA से कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमारे तक अप्रोच करने के लिए ACCA को कांटेक्ट कर सकते हैं। We are here for next week as well कि हम आपको डिफरेंट स्लैब से चलेंगे, हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तरफ भी लेके जाएंगे, हम आपको विदहोल्डिंग टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स के चालान बनाना और रिटर्न फाइल करना भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ सेल्स टैक्स, उसकी इम्प्लीकेशंस, उसकी फाइलिंग, उसके नॉलेज बेस सब चीजों से लेके गुजारेंगे। Most of the questions are coming from the withholding tax regime. Actually, withholding tax will be covered in withholding tax section. You can write lot of questions कि withholding tax के बारे में क्या पूछना है। We will answer you there, inshallah. Tax planning cannot be covered in a single session. It actually need knowledge of proper taxation। क्या आपको भी पता हो कि उसके बारे में क्या क्या चल रहा है, because we cannot describe you the tax planning के जी हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। हमें उसके लिए आपके भी प्रॉपर नॉलेज बेस्ड जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चाहिए होंगे कि जिनको एटलीस्ट पता हो कि क्या हो रहा है और उसके अंदर हम टैक्स प्लानिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू अकबर, इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और उतरने की कोशिश भी करेंगे। Farouk, this question typically related to you regarding to e-commerce. Please answer this as we just have 2 minutes left to end the session. Can you please explain? Yes, it said okay. So what I understand is 8.7%
75% income tax to be payable when dealing with local customer in the online business, but whereas when we are getting foreign remittance from online business, that is exempt based on using the banking channel. Is it right? Well, yes. Again, that if there is, this is Muhammad Adnan. Adnan, again, 8.75% is also too much higher. As I have already told you, that we will consider it as our normal business, whether we are providing services or we are providing supply of goods or trading items. So if that is services or trading items, that the tax that is for such as in 10% for 9% or 10% for individuals, and for individuals it's 4. By the customer. As you are only dealing with retail customers, then you have to go for your minimum tax. That would be around 1.5% of your total revenue earned during the year. No, that's not the profit. That's totally your value of sales. Value of sales, you can say it total revenue, and this is, and that would be around 1.5% फॉर मिनिमम टैक्स. जहां तक रह गई है आपकी बात बिजनेस टैक्स की, अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है, so that would be go as per section 18 business income slab rates on your profit, and that would be computed on higher off. If your minimum tax is higher off, then that would be your tax liability, and if your business income or business profit is has that higher tax liability, then this would be your tax liability. Now come towards. Okay, thank you very much. Hope this answers the question. Okay, guys. Okay, guys, we are running out of time, and this is the end of this session. The last question I answered is, अगर आपको आपका बेटा पैसे भेज रहा है तो that is tax exempt, क्योंकि foreign remittance किसी भी condition में exempt from income है. Thank you very much, all of you, and thank you my friends Sikandar and Farooq for attending this session. Inshallah, we will see you in next session. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.